శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్రవం శుక్లాం భరధరం వైష్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. అస్యాం శుభతిథౌ మమ సహ కుటుంబస్య సపుత్రకస్య సభ్రాత్రకస్య సబాంధవస్య క్షేమ స్థైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం. అందరూ తమ పేరు గోత్రము పిల్లల పేర్లు బంధువుల పేర్లు మనసులో సంకల్పం చేసుకొని అందరూ ప్రార్థన చేసుకోండి. எல்லாரும் தம் பிள்ளைகள் புத்திரி புத்திரிகள் பந்துகள் எல்லா பேரையும் ಸಂಕಲ್ಪம் பண்ணிட்டு ಪ್ರಾರ್ಥನೆ பண்ணிக்க வேண்டியது. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. सब आदमी के लिए सब नाम से भगवान के लिए संकल्प करने का प्रार्थना करिए. प्रणाम करो. मम
सह कुटुंबस्य संभवत नियमेन संभवत कालेन संभवत द्रव्येण श्रीमते वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवास अर्पितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోவிந்த. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம்வினை ஓயுமே என்றும் ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழி குரல் அருவி திருவேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே என்கிறார் எம்பெருமான் நம்மாழ்வார். அப்படிப்பட்ட அந்த வேங்கடவனை செவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ அருணா. திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜம் வேத மந்திரங்கள் மங்கள வாத்தியங்களுடன் ஆரம்பமாகிறது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இன்று விசேஷமான நன்னாள் கைசிக துவாதசி. எம்பெருமான் அதிகாலையிலேயே அந்த திருவீதி உலா திருமலையிலே திருவீதி உலா வந்து உள்ளே சென்று விட்டார். மேலும் வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை மாதம் விசேஷமான நன்னாளிலே துவாதசி. இந்த திருநாளுடன் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. சேனா முதலி எனப்படும் அந்த விஸ்வக்சேனருக்கு முதலில் ஆராதனை. அதற்கு முன் பெருமாளுடைய திருவடிகளை சேவிக்கலாம். तस्मै समस्त वेदार्थावदेव गणसे नमः। सूत्राणां निवृत्तानां नेत्रेतस्तानुमरेजे सूत्रं वैखान संबंधे भगवत् क्रमजोजगं नारायण पिदायस्यायस्तवादा हरिप्रिया मृग्वागमणि अपुत्रा तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सद्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते यस्य तेनवक्राद्या पारसत्या परस्सदं निग्नं निग्नं विश्वक्सेनं तमाश्रये अतदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य पदे प्रजोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीवामलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि शुद्धपुण्याः वाचं करिष्ये। आधो निर्विघ्नेन परसमावाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। दारासरप्तस्तुमानदेजोऽसरस्य परपोरदेजो अभोमि गृह्णन् परिपादेष्ये गणोपदत्तां स्वदर्गं सुगर्भा इदमापशिवा सुदमा शान्ता शान्तिर्वा शुभा शुभमा उदा पद्रमा पुण्या पद्रमा मेध्या मेजर्मा अमृतामृतसाः बोधा ब्रह्मपवित्रेण बोधा सौर्यस्सरस्सुभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं भक्तिकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना सर्वतीर्थजलेभ्यो नमः। पुष्पगन्धाक्षतेरभ्यस्यां सुपुण्यतीर्थं करोमि गायत्र्या प्रोक्षां तस्वरेः न्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विश्वक्सेन स्मृतो अनेता भगवान् शुद्धकर्मणः तस्यादेव उपजान्तये। ॐ प्रेक्षाम देशो विपदानामनाभिः यामे सस्तां दलितां दरातो। ॐ पद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमृतमावाहयामि वाहयामि जयामवाहयामि सूत्रवती जया जगत श्री विश्वक्सेनाय नमः। ध्यायामि ध्यानस्वरूपयामि आवाहयामि औपचारिक स्थानस्वरूपयामि वस्त्रग्रामत्रयावनार्थे पुष्पाणि पूजयामि धूपाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। यदा भागधा भगवताम्बूलं निवेदयामि। विश्वक्सेनाय नमः। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सप्रोक्षितम् अस्तु।
प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा इदयः शुभानि वर्धन्तां तरां शुभानि साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा इदयः शुभानि वर्धन्तां तरां शुभानि अतो देवावन्तुरायितो विष्णुरुचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः इदं विष्णुरुचक्रमे त्रेदानदेवदं समोणवस्य भागं सुरे त्रेणुपदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः सरोधर्माणि धारयन् विष्णोकर्माणि पश्यतो आवृतानुपदे इन्द्रस्य यज्जस्सका तद्दिष्टात् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः तमेव दक्षुराजरं तद्यप्रासो पञ्चमो जाकृवागं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिस्तदयाम देवाः पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु पुण्याहमेव कृते वैवाहिकोऽस्तु कर्मणि स्वस्ति मन्ता आवृन्ता स्वस्ति नैन्द्रा वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टार्क्षो अरिष्टदेविः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु अस्मिन् पुण्याहं कर्मणि मन्ता आवृन्ता वृद्धिस्तमृद्धिः वृद्ध्यास्म हव्ये नमसो वदत्या मित्रं देवं मित्रदेन्नास्तु अनुराधानवशा वर्धयन्तः सदञ्जीवेमसरदस्तवीराः आपो हिष्टावयोपवस्थानवोर्ते जराजुना अहेरणा इदक्षते गोपस्थितमोरदस्तस्तवाद्यदेनः तदेव मातरः तस्मारगवाम को स्वक्षयाय जन्मदा आपो जनयाजरः हिरण्यवर्णा सतयः पावकायाजुरातकस्य भोजास्वन्द्रः अग्निर्यागर्भन्दतरेवरूपास्तान आपस्सग्रस्यो नामवन्तो या सागं राजा वरणो याजमध्ये सत्यामृतया उपसञ्जनानां मदसुतसुतयो याक्पावकास्तान आपस्सग्रस्यो नामवन्तो यासान् देवादिविदन्नन्ति पक्षय्यान्तरिक्षै बहुधा भवन्ति या प्रथमे वयता शुक्रास्तान आपस्सग्रस्यो नामवन्तो शिवेन वाचक्षुषामस्य वयावयवतरं मे आपोहिष्टावयो भवस्तानवोर्त्यै जरादुना दिवसयस्वान्तरिक्षे तस्वा पृथिव्याः सम्मवर्त्यसमजे ब्रह्मवर्चसा जित्वा पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण विदर्शिनिः तत्पोतासमनातुमा परन्तमा देवजनाः परन्तमनुमोदया परन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवदे पवित्रेण पुनागिमा शुक्रेण देवते जते अग्ने कृत्वा तोनिमृणो यत्ते पवित्रमचसे अग्नतेन वन्दरा ब्रह्मतेन परेमहे उपाभ्यां देवसौधः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्मपरेमहे वैश्वदेवे वरदे देव्यागा आदक्वे दक्वे तनुवो विरवृष्टाः तया रमाद्येजो वयस्सुज्ञानिरोपनीनां वैश्वानरो वज्रदन्नापनातो पादप्राणे वैसुरोमयोवोः जावावृदेवयसावयोभिः वृदावरे यज्ञेनापनीता बृहस्पतिर्दभिः परशिष्टैर्देवमन्दभिः अग्ने कृत्वे पुनाहिमा तेन देवापुरता तेनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपरेमहे यत्पावमान्ये रज्जयते पृथिभिस्तं पृथगं रसो सर्वगं सबोधवस्ताते सबुदं वामविस्मना पावमान्येद्यो अद्यैति पृथिभिस्तं पृथगं रसो तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरगं सर्पिर्मदोदगं पावमान्ये स्तस्तयनैः सुदुगाहि वयस्वतिः पृथिभिस्तं पृथोर्धः ब्राह्मणे शतगं इदं पावमान्ये विशन्तुनः इमं लोकमदोदगं कामाः समर्धयन्तुनः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्तयनैः सुदुगाहि वयस्वतिः पृथिभिस्तं पृथोर्धः ब्राह्मणे शतगं इदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः परन्तवां प्राजापत्यं पवित्रं सदोत्माजगं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविचोदयो भूतं ब्रह्मपरेमहे इन्द्रस्वहयते सहवावनादो सोमस्वस्यावृणस्तमेद्या यमो राजा आवृणादि पुनागमा जातवेशा मोर्जं चावनादो तस्संयो रावणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओर्ध्वञ्जगातवेदिनं सन्धा अस्तोद्यपते सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः प्राच्यां देवार्जितो मार्जयन्तां दक्षिणायाम् इदमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदेत्यां देव यज्ञपतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां स्वाङ्कृतोति
आपोहिष्टापयो भवस्तानमूर्ते दुरादुना महेरणाय दक्षसे योऽवस्युतमूर्तस्तष्टपादीय तेनः उततेरिव मातरः तस्मायस्वच्छया यजन्वता आपो जनयता जनः दिविस्तयस्वान्तरिक्षय तस्मा पृथिव्या सम्भवर्त्यसमसि ब्रह्मवर्त्यसा यत्वा देवस्तत्वा प्रसुवे अस्मिनोर्बाहुभ्यां वोष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि राजात्मा वरुणो नयतु देव दक्षिणे हिरण्यं तैरामृतत्तवस्यां मयो धात्रे कामप्रतिग्रहेत्रे कैगङ्गस्मादादे कामः कामाय कामो धाता कामकं शमुद्रमांश कामेनत्ते एषा ते कामदक्षिणाः उत्तानस्वाङ्गेन स प्रते गृह्णातु सूत्रवती ध्यासगित श्री विश्वक्सेनाय नमः यदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं पुनरागमनाय च श्री विश्वक्सेन देवता सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం ஸ்ரீயாத்யாசித வட்சசம் ஸ்ரீதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்துக்கொண்டு விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். இன்று கார்த்திகை மாதம் வெள்ளிக்கிழமை துவாதசி திதி ரேவதி நட்சத்திரத்துடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது திருமலை சாற்றுதல். காமதேனு பசுவினால் குடும்பத்தை காப்பாற்றி வந்த ஒரு ஏழை குடும்பம் துறவி வந்து அதனை அவிழ்த்துவிடு, அது எங்கேயாவது செல்லட்டும் என்று கூற குருவின் வார்த்தையை மீற முடியாமல் சரி என்று செய்தான். அந்த குரு செயலால் கோபம் கொண்டு ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலை. சில ஆண்டுகள் கழிந்ததும் குரு அந்த வீட்டை சென்று பார்த்து வர கூறிய பொழுது 2 மாடி கட்டிடம், விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள், பழைய ஏழ்மை நிலை இல்லை. ரகசியம் என்னவென்று கேட்க என் பசு காணாமல் போய்விட்டது, தேடியும் கிடைக்கவில்லை, என் வாழ்வின் ஆதாரமே போய்விட்டது என்று எண்ணினேன். ஆனால் வாழ்க்கை நடக்க வேண்டுமே, அதனால் காட்டிலே கிடைக்கும் பழங்கள் கிழங்குகளை ஊரில் சென்று வியாபாரம் செய்து நல்ல வருமானம் வந்தது. நிறைய கதவுகள் திறந்து கொண்டன. அதுவரை பசு தான் என் பலம் என்று இருந்தேன். அது துர்பலம். வாழ்க்கையின் பரிமாணங்கள் பல இருந்தாலும் ஒரே பந்தனத்திற்கு ஆளாகிறோம். கட்டுகள் அருந்தால் விடுதலையே அல்லவா என்று இப்படியெல்லாம் கருணை காட்டி அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்தார். அந்த கைங்கரியத்திலே மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை செய்து பூஜை செய்த பிறகு இப்பொழுது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜை. இன்று துளசியினுடைய திருமணம், அதாவது பிருந்தாவனத்திற்கு கல்யாணத்தை செய்து பூஜை செய்தால் மிகவும் விசேஷமான பலன்களை கொடுப்பாள் அந்த துளசி மாதா. அப்படி வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு நன்னாளிலே அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா பூஜை. श्रीनिवासकर्मणि रक्षाबंधनाकर्मकर्ष्ये ओं शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि सहस्रशेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि शेषाजिर्महाध्यायामि ध्यानसमर्पयामि आवाहयामि औपचारिकस्नानसमर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि दुर्वाग्राभयामि दिवन्दर्शयामि यदा भागतः भगवतां निवेदयामि गुणोभारये चतुर्भयामि शेषाजिर्मः सप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. ओं स्वस्ति नाममेतानस्तिनापगस्ततिर्वणः स्वस्ति पोषा शिरोधनाजुर स्वस्ति द्याव पृथवेशो चेतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य यस्पतिः
बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्ति न आदित्यासो प्रबन्धु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देव अवब्रव स्वस्तये देव ब्रव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र पार्थं वसः स्वस्तिमित्रावरुणा स्वस्तिपत्ने रेवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अधिते कृते स्वस्ति बन्धामनोचरेमा सूर्य चन्द्रमसा विवा पुनर्ददाजादाग्नया संगामे महे स्वस्तयनन्ताक्ष अधिष्ठने विमहर्भोदं वायसं देवतानामसुरग्निन्द्र त्वं दस्ततो अमारहेव अहं भोजामाङ्गेन्द्रस्तत्याद्येयं मनसा जिराद्यं प्रैतपानिस्सरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभाये स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभम्। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ஒரு நாள் பலராமகிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்திலே உள்ள குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு பனவனத்திற்கு சென்றாராம். அந்த வனமானது நிறைய ஏராளமான பனை மரங்கள் நிறைய உள்ளது. அதற்கு பழுத்த பனம்பழங்கள் கொத்து கொத்தாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தன. அவற்றை பார்க்கவே குழந்தைகளுக்கு வாயூறியதாம். அனைவரிடத்திலும் பலசாலி பலராமன், நான் மரத்தை உலுக்குகிறேன், கீழே விழுந்த பழங்களை பொறுக்கி எடுங்கள், நாம் அனைவரும் சாப்பிடுவோம் என்றாராம் பலராமர். அப்படி ஒரு மரமானது மற்றொரு மரத்தை தன் 2 கைகளாலும் கட்டியாக பிடித்து உலுக்கினான். பழங்கள் கீழே விழுந்து கொண்டிருந்தன. அந்த வனத்திலே தேனுகாசுரன் என்ற ராட்சசன் இருந்தான். அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவன் கழுதை உருவம் எடுத்து பலராமன் மீது மிகவும் கோபமாக வந்தானாம். பனை மரத்தை இருக்க பிடித்தது போலவே அவனை கழுதையை 4 கால்களை பற்றி கிரகிரவென்று திருப்பி மரத்தின் மீது மோதி கொன்றான் பலராமன். அப்படி தேனுகாசுரனை வதைத்த பலராம அவதாரம் எடுத்தவன் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் யாரேனும் தங்களுடைய கவலைகளை மறக்க வேண்டும் அல்லது தங்களுடைய இக்கட்டுகளை அந்த இக்கட்டுகளிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு பகவானை சேவித்தால் அவன் ரட்சிப்பான். அப்படி ரட்சிக்கும் பரந்தாமனுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்து கொண்டிருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்திலே எம்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. பகவான் அப்படி அனைவரையும் ரட்சிப்பான். தேனுகாசுரனை அப்படி வதைத்தவன் பலராமன். அதேபோல் ஒரு நாள் கிருஷ்ணன் பலராமன் இல்லாமல் காளந்தி நதிக்கு விஹாரமாக கோப பாலகர்களுடன் சென்றான். அனைவரும் கலந்து ஆடல்களுடன் நீண்ட நேரம் சந்தோஷமாக கழித்தனர். அந்த பாலகர்களுக்கு தாகம் எடுக்கவே அங்கே தண்ணீர் சாப்பிட முடியாமல் அந்த பாலகர்களுக்கு தாகம் எடுக்கவே காளிந்தி நதி நீரை பருகினர். உடனே அனைவரும் இறந்துவிட்டனர். அந்த காளிந்தி மடுவிலே காளியன் என்ற பாம்பு 5 தலைகளுடன் பயங்கரமாக இருந்தானாம். உயரமாகவும் தடிமனாகவும் கருப்பு தேகத்துடனும் பயம் ஏற்படும் விதமாக உள்ளான். அவன் விடும் மூச்சினால் அந்த மடுவெல்லாம் கூட விஷமாக மாறி தாகம் தீர்த்து கொள்ள முடியாமல் இருந்துவிட்டது. கோப பாலகர்கள் இறந்துவிட்டதினால் காளியனை பற்றி தெரிந்து கொண்ட கிருஷ்ணன் தன்னுடைய நல்ல எண்ணத்தினால் அவர்கள் அனைவரையும் உயிர் காத்து காளியனின் மதத்தை அடக்க மடுவிலே குதித்தான். அப்படி
அதை பார்த்து கோபபாலர்கள் பயங்கரமாக கூச்சலிட்டார்களாம். அதன் பிறகு அந்த நேரத்திலே அங்கு பலராமன் வந்து நடந்தது என்ன என்று கேட்க, அந்த பாலகர்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு பயப்படாதீர்கள் என்று அவர்களை தைரியப்படுத்தினான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் காளிந்தி மடுவில் குதித்து அடியிலிருந்த நீரை கல்மஷமாக்கினான். அதாவது கல்லோலப்படுத்தினான் அந்த நீரை கீழும் மேலுமாக. இப்படி இந்த சத்தம் கேட்டதும் காளியன் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கிருஷ்ணன் மேல் விஷத்தை கக்கி கொண்டு முன்னுக்கு வந்தான். அதையே சமயமாக ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அந்த வாலின் பின் சென்று வாலை சுருட்டினான். காளியனின் தலையை பின்னாடி திருப்பி கிருஷ்ணனை கடிக்க வேண்டும் என்று மிகவும் முயற்சித்தான். பெரிய பெரிய ராட்சசர்களை சம்ஹரித்த பாலகிருஷ்ணனுக்கு காளியன் ஒரு கணக்கா என்ன? காளியன் வாலை இன்னும் கெட்டியாக இருக்கினான். காளியன் வலியை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் போனான். அவனுடைய மூக்கு வாய் வழியாக விஷவாய் வெளியில் வந்தது. களைந்து போய்விட்டான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சுனாயாசமாக அவனின் வாலின் மீது மடுவரை சென்று ஒரு கையில் வாலை பிடித்து கொண்டு நடனமாடத் தொடங்கினான். காளியனின் மதம் அடங்கியது. ஸ்ரீகிருஷ்ணனை சரண் வேண்டினான். கருடனுக்கு பயந்து இங்கு வந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணனை பிரார்த்தனை செய்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் காளியனுக்கு அபயமளித்து, என் பாத முத்திரைகள் உன் தலை மீது இருக்கும் வரை உனக்கும் உன் இனத்தினருக்கும் கருடனால் எந்தவித ஆபத்தும் வராது. நீ உடனடியாக இந்த மடுவில் உள்ள விஷத்தை அழித்து வெளியே எடுத்து சென்று போ என்றான். காளியன் மடுவில் உள்ள விஷத்தை அழித்துவிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ணனை படகின் மீது சுமந்து கொண்டு வந்து கரைக்கு சேர்த்துவிட்டு அந்த மடுவை விட்டு வெளியே வேறினான். கோப பாலகர்கள் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு நன்றி கூறினார்கள். அப்படி அனைவரையும் ரட்சித்தவன் அந்த பரந்தாமன். அதேபோல் இங்கே நாச்சிமார்களுக்கு கூட ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது தன்னுடைய கரத்திலே ஆத்ம ரட்சைக்கான கயிற்றினை கட்டிக்கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்கள் செய்ய உள்ளார். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனை சேவிக்கலாம். மாப்பிள்ளை கோலத்திலே கோவிந்தனை சேவிப்போம். சர்வ ஜெகத் ரக்ஷகன் அந்த பரந்தாமன். அப்படிப்பட்ட அவனுக்கு திருவேங்கடமுடையானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம். देव्या होतार अजयस्यास्यामगाः एतस्यन्नो साता प्रतवेतोकसाता तस्य जवरेहेण्यम्बर्गो देवस्य देमहे धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदसे भुवनस्य अरणङ्ग्रहे त्वाम् उद्धन्नमानस्तारुदन्तो एतस्यन्नो साता प्रतवेतोकसाता तस्य जवरेहेण्यम्बर्गो देवस्य देमहे धियो यो न प्रचोदयात् जातवेदसे भुवनस्य अरणङ्ग्रहे त्वाम् जातवेश्ये अग्निसत्तानन्द्योः उदीघो प्रज्वाल्या उपावरो अग्नन्निधाय अग्नायाखिवेतये गुणानो हव्यदादे निहोदा सत्यपरिहृजे अदितेरमन्नस्व हनुमतेरमन्नस्व सरस्वतेरमन्नस्व देवसविदप्रसोव ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मं प्रस्तादिरयो देनावः समुद्यापमानस्य विष्टाः ॐ भूः ब्रह्माणमावाहयामि ॐ भुवः प्रजापतिमावाहयामि ओगुं सुवः पितामहमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेरभ्यर्च्य सोमो देनुगं सोमोवाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेरभ्यर्च्य नमन् बोधिष्यामि आदसदवानास्तु ॐ प्रोक्ष्यां पात्रादानामाधायाम्
असौर्यस्य रश्मिभिः आपोदाग्ने प्रोक्षितास्तां विष्णोस्तुपोऽसि प्राच्यां विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणदा विष्णोस्तुपोऽसि उदवेञ्च विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमसौधत्तां विष्णोस्तुपोऽसि सुदासि ध्रुवासि ध्रुवासि दारुणासि दारुण्यच्चो देवेदिन्द्रच्या पृथिव्यापोरिष्यामि ब्रह्मण्ड प्रेष्यामाञ्च अध सर्वानोस्त्वम् ॐ प्रोक्ष्यां वर्खो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मणः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि उषानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमवाहयामि औपासकमावाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यवाग्ने द्रावदेति सर्वरूपामि अग्नये सर्वरूपामि अग्नि सोमाभ्यागु सर्वरूपामि तृप्तिदस्तयामि द्रविदस्तयामि अग्निज्योतिरसे समुद्रस्वाहा अन्तरिक्षाज्ञेन भविष्यतो सूर्यस्तरस्मै स्वाहा वास्तविकपादावस्तेन भविष्यतो सूर्यस्तरस्मै स्वाहा तत्सम्पूर्णाद्वासयित्वा अक्षताम् अध्वर्याम् आद्याम् चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः दातवेसे नमः वैश्वानराय नमः विषत्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः नमते नमः सरस्वते नमः देवसौधप्रसोमा कलसम्पूर्णाद्वासयित्वाघारान्त मुहूर्तस्य मुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु आगत्वां वायुव्यादग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा असभ्य स्वाहा मदभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा ओष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा औपासज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याविहार्य चरुं सागत्वां गृहेत्वा पुनरभिघार्य ओं भो स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अग्निर्मग्गस्ताः देवसौधप्रासावेः अस्रेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य स्त्रिवतगिराण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि आघारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुनादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाय वैष्णवं होष्ये ऐतेयमन्नस्वा नमतेयमन्नस्वा सरस्तेयमन्नस्वा देवसौधप्रसोमा अतो देवावन्तुनायतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा भविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधागते पदं समो नमस्वागं सुरे स्वाहा त्रेणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः रोधर्मानुधारयन् स्वाहा विष्णुः कर्मानुपस्तते तो आवृतानुपदे इंद्रस्य यज्जुस्सकां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा पश्यन्ते सूर्यः तमेव दक्षुराजरग्गः स्वाहा तद्यप्रासो विभञ्जमो जाग्रवागं सस्यविन्दते विष्णोर्यत्परं पदग्गः स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अजते नमग्गस्ताः हनुमते नमग्गस्ताः सरस्वते नमग्गस्ताः देवसविधप्रासामि जानोस्तान् त्रिवानिसां विष्णुभक्तरोरा शेषाना सहसोजा मनोगा बृहस्पतिर्वाजमित्रादवानः सन्तवाना माना हविनो गुणन्तो इष्टं भो दिवो दरुणपृथिव्यानः शेषाना
जगतो विष्णुपत्नी संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानत विजानते संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसी आयुः सम्भोदं बोधं चित्रकेतुप्रभानाभान् संहाने ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभग्गस्तपन्नमुदपन्ने रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः स्वस्ति श्रे कल्पद्रुमकालक चिंतामणि गजाद विस्तारकस्य देवासुर प्रस्तारकस्य निखिलक मुगमायमानस्य वयक्पारावानस्य अस्मिन् प्रदेशे कर्पूरधवल निर्मित संतानो ध्यान परमृदे विश्वक्सेनादि प्रधानकं पुरुषद्वारपालक संशोभिते वैकुण्ठनगरे सिंहासनाधिरूढस्य अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या ब्रजमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एतदव्यक्तमदहङ्कारप्रदीयक्तेजो वायुराकाशात् तैरावनैरावृते अस्मिन् महतद्ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिकूर्मानन्तप्रथमे क्षीरसागरे श्वेतद्वेपदिव्यमहामण्डप अष्टदिग्गजोपरिप्रतिष्ठितस्य अतल वितल रसातल महातल महीतल सप्तपातालकस्योपरितले भोर्लोक भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जलालोक तपोलोक सत्यलोकाख्ये सप्तलोकस्य अधोभागे महानारायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रपण मणिमण्डलमण्डिते दिग्दण्डदण्डार्तम्बोर्तम्बिते लोकालोके ज्वलयते लवणात् सागरे प्रवृते जम्बो प्रक्षा सप्ते दीपैर्दीपिते माहेन्द्रादि सप्तकुलपर्वत विराजिते हेमकूटादि महारिष्टात्मिके इन्द्रप्रस्थात् नवगण्डात्मिके हरिपुरुष किंपुरुष ऐरावतानाम् इंद्रप्रस्थ पांचजन्य सिंहालंतिके पंचाशत्कोदन विस्तीर्ण भूमंडले अखंडात्मिके जम्भोद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे समभूमध्यरेखायां श्री वेंकटाचल दिग्भागे कृष्णा कावेर्योर्मध्य प्रदेशे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले दशपूर्वेषां दशापरेषां तद्वंस्याणां पितॄणां नरकादिमुत्तीर्ण आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोप्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य चतुर्विधमोच्च फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं आधारशक्तिर्वादसारभिः भृग्वत्तमरीचिकाश्चमाभिः गुरु चातुर्लक्ष प्रमाणाभिः दिव्य वैदिक विधानेन नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण नानादोक्त प्रकारेण वेदोक्त मार्गेण विखरसोक्त प्रकारेण हेमाद्रि कन्यादानास्तु फलाप्राप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये अस्य श्रीमदानारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य संकचक्र नंदकाक्ष गदाधरस्य श्रीमोभा वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखान सागमोक्त प्रकारेण आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य पंचमेन प्रवर्तमानस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य भगवत परवासुदेवस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलस्वयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोज्यादिवसात् पश्चिदावतारस्य संकर्षणावतारस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगेन स बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतादिमुकुट मरीचि विराजित पादारविन्दस्य अर्चावतारद प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय
आंगेरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्राज प्रवरानुद भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीट केयूरुहार दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय प्रबंध पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्या स्वभावलावण्य नित्य यौवन तेजो रत्नाकराय सकल साकाध्यायिनो अखिल गोत्र पवित्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्वेदसामाद्रवस्त्रोद्भवस्य सकलवेद शाखाध्यायिनीं ईश्वर विश्वम्बर सौभाग्य श्रीवत्स श्रीनिधि प्रचार्षे प्रवरान्वित श्रीवत्स गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगराज संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु वक्षस्थल निवासिनीं आनंदगणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां अयो निजां रमां श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि काश्यपावस्यारदैद्रवत्र्यार्षे प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगनाद संसेवित पदारविन्दां श्री महाविष्णु अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं हो श्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां त्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेद्भूषितां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके यतीशयाः कन्यादानमुहूर्तस्तमुहूर्त महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை, திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த திருத்துழாய் என்கின்ற துளசி மாதாவிற்கு இன்று பிருந்தாவன கல்யாணம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தை மாலை வேளையிலே செய்தால் மிகவும் புண்ணியம், நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். காலையிலே கைசிக துவாதசி என்று எம்பெருமான் திருமலையிலே திருவீதி உலா வந்து கோவில் உள்ளே சென்று விட்டார். இப்பொழுது கல்யாண உற்சவத்திலே அந்த பகவானுடைய அனபாயணிகளான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அர்ச்சனை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாய பதய நமோ நமஹா என்று ஆபதாம ஹர்த்தாரம் தாசாரம் சர்வதம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யகம் என்று அந்த ராமபிரானை செவிக்கலாம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே ராமாவதாரமும் ஒன்று. திருவேங்கடமுடையானாக திருமலையிலே எழுந்தருளி விசேஷமான பலன்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் பக்தர்களுக்கு. அப்படி அந்த ராமாவதாரத்தை சற்று நினைத்து பார்க்க தோன்றுகிறது. புத் என்ற நரகத்திற்கு மீட்பவன்தான் புத்ரா. தசரதனுக்கு புத்திரன் இல்லாத குறையை ரிஷ்யசிருங்க முனிவர் மூலம் புத்திர காமேஷ்டி யாகத்தால் பிறந்தவன்தான் ராமபிரான். ராமபிரான் பிறந்தது நவமி புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் கோசல நாட்டிலே உள்ள அயோத்தியில் பிறந்தான். தாயார் கௌசல்யா தேவி, அவனுடைய வில்லானது கோதண்டம். தினந்தோறும் அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல், அதாவது காலையிலே சுப்பிரபாத சேவையிலே
அந்த ராமபிரானுடைய தாயாரை நினைத்து அந்த சுப்பிரபாதம் பாடப்படுகிறது. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராம பூர்வா சந்தியா பிரவர்த்தத்தே என்று அந்த கௌசல்யனுடைய மைந்தனாக ராமபிரான் அவதரித்ததால் தான் அந்த சுப்பிரபாதமே பாடப்பட்டது என்று கூறுகிறார்கள். அதேபோல் நாராயணனின் மிக முக்கியமான அவதாரங்களிலே முக்கியமானது ராமாவதாரம், ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரம். முதலில் ராமபிரானுக்கும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ராமர் ஒரு சொல் ஒரு பாணம் ஒரு பத்தினி என்றே நாட்டம் கொண்டவர். கிருஷ்ணர் 100க்கும் மேற்பட்ட மனைவர்களை திருமணம் செய்து கொண்டவர். ராமபிரான் யுத்தத்திலே நிராயுத பாணியாய் நிற்கும் ராவணனிடம் இன்று போய் போருக்கு நாளை வா என்கிறார். ஆனால் கிருஷ்ணனோ நிராயுத பாணியாய் நிற்கும் கர்ணனை பார்த்து குரிவை என்று சொல்லுகிறார் அர்ஜுனனிடம். இப்படி கர்ணனை எவ்வளவோ சொல்லி பார்க்கிறேன். அர்ஜுனனிடம் யுத்த தர்மத்தை விளக்கி கிருஷ்ணன் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை. இப்படி அதாவது அர்ஜுனன் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை, கிருஷ்ண பகவான் கூறும் பொழுது இப்படி காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை என்று வருத்தப்படுகிறார். இப்படி ராமபிரானாகவும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் பல உதாரணங்களை கூறலாம். அதேபோல் ராமபிரானின் தந்தை தசரதனுக்கு 3 பேர் மனைவிகள். ஆனால் ராமபிரானோ ஏகபத்னி விரதன், ஒரே பத்னி ஒரே ஏகபத்னி விரதம் எடுத்தவன். இப்படி இந்த ராமபிரான் சில நேரங்களிலே சீதாராமனாகவும் பரசுராமனாகவும் கோதண்ட ராமனாகவும் ஜெயராமன் ஜானகிராமன் சுந்தரராமனாகவும் காட்சி தருகிறார். நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது விபீஷணனுடைய சரணாகதி. ஆனால் லக்ஷ்மண சரணாகதியும் சுக்ரீவ சரணாகதியும் தெரியாது. ராமபிரானோடு கூட போனான் என்பார்கள், சுக்ரீவ சக்கியம் என்றுதான் கூறுவார்கள். ஆனால் ஒருவரும் லக்ஷ்மண சுக்ரீவ சரணாகதி என்று கூற மாட்டார்கள். சரணாகதி என்றால் சிபாரிசு இருக்க வேண்டும். இருவர்களுக்கும் சிபாரிசு இருந்தது. ராமபிரான் பண்பாட்டின் சிகரம் என்று கூறுகிறார்கள். ராமபிரானுடைய புலநடக்கமானது மிகவும் விசேஷமாக கூறக்கூடியது. சூர்பனகையே இதற்கு சாட்சி. தசரதனிடம் தன் தாய் கைகேயை மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ளவும் தன் தம்பியான பரதனை தன் பிள்ளை என்று ஏற்றுக்கொள்ளவும் என வாதிடுகிறாள். ஆழிசூழ் உலகம் முழுவதும் பரதனே ஆள வேண்டும் என்று கைகேயி கூறவும் அன்று மலர்ந்த செந்தாமரை மலர் போல் இருந்ததாம். ஆனால் லக்ஷ்மணன் போன்ற தம்பிகள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று கூறுகிறார். இதை வால்மீகி தேசே தேசே தளா ராணி தேசே தேசே பாந்த்வா தம் தும் தேசம் நபஸ்யாம யதப்ரதா சகோதரே என்று கூறுகிறார். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து தேவே வசுந்தரா சாத்வசுதா தேவேர்வாசவே பிரம்மவத்சதபதுனாம் கோத்ரம் தக்ஷர்மணः தேவி ஹிரண்யகர்ப்பிணி தேவி பிரசோதரி சதுரே சத்யாயரே சீதா சமுத்ரவதே சாவித்ரே அனோ தேவே மக்ஷகே சுங்கே ஸ்ருங்கே யக்ஞே யக்ஞே இந்திரபத்னே வாயுமதி ஜலசயனே ஸ்திரியம் தாராய சத்யந்தோ பரமேதரே சோபரிதத்தங்காய மாங்கல்யம் தந்துநாதேன லோகரக்ஷண ஹேதுவே கண்டே பத்னாமி சுபகே கண்டே வசரதாம் சதம் ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं दयतां ध्रुवम् विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमां यच्युतवल्लभां धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो दया प्रचोदयात् सुमङ्गलेर्यं वधोरिवागं समेतमस्यतां सौभाग्यस्मै तत्त्वायादास्तं विपरेतरा माङ्गल्यं तन्तुरानेन जगज्जीवनहेतवे कण्ठे भद्नामि शुभगे
కంఠేవ శరదాం సదాం మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త మహాంతో నిగృహంతో సుముహూర్తోస్తు. ब्रह्मांड नायक सेवो निराज वेदस्य से श्रीनिवास महाविवाहिकोस्तव कर्मणि प्रदाभवम होषे ऐते मनस्वा हृदय मनस्वा सरस्य मनस्वा वेदो प्रतोभा अग्नेय प्रथमो देवता नामजे जमराजा भद्रबोधा स्वाहा इमं मे निजस्वादके स्वाहा तत्त्वाया दन्तमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो आयु प्रमोषे स्वाहा चित्तञ्ज स्वाहा चित्तज्ज स्वाहा आकोदञ्ज स्वाहा आकोदञ्ज स्वाहा विज्ञानञ्ज स्वाहा मनज्ज स्वाहा सप्तरेब्ज स्वाहा वरदज्ज स्वाहा वनमाब्ज स्वाहा अन्तरञ्ज स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा हरितेर्मग्रस्ताः यशोदप्रासावेः वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेष्ठपदे पुरुषोत्तमस्य स्तुतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः विवाहिकोत्सव कर्मणि लाजहोम होष्ये अदितेमन्नस्वा हृदयमन्नस्वा सरस्यमन्नस्वा देवसविदप्रसोभा इमान् लाजानभिगार्य इमान् लाजानापतयो पवित्रमोधा स्वाहा नर्य प्रजां मे गोपायान् अमृतत्वाय देवसे जाताञ्जरिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वभिजन्मे गोपाय रसवन्नमिहायुषे अदब्धायोऽसि दतनो अविशन्नः पितं कृणोम् सर्गस्य पसोन्मे गोपाय विपादो ये चतुष्पदः अष्टासवाश्रिया इहाग्ने ये चैच सभा आसुगाः सप्रभसवान्मे गोपाय ये च सभ्याः सभा सदः
ध्रानिन्द्रियावदः कुरोम् सर्वमाजरुपासदाम् अहे बुद्नय मन्त्रं मे गोपाय यमजय श्रियैदाविदः हृदस्तामानिदोगं से साहिस्वेरमृता सदाम् ॐ भुवः स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा हिमालयजनापतय पवित्रमाधा स्वाहा नमगस्ताः हनुमते नमगस्ताः सरस्वते नमगस्ताः देवसविदप्रासावेः अस्रेव देवस्वगतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि लाजहोमान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुनादोषादि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवं होषे अदिते मुन्नस्वा हृदय मुन्नस्वा सरस्य मुन्नस्वा देव सविद प्रसूवा अतो देवा अवन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निरते पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा अष्टाकर्माणि वसते अमृतानि वसते इन्द्रस्य यज्जुषगां स्वाहा तद्विष्णात् परमं पदकं सदा वस्यन्ते सूर्यः तदेव चक्षुराजनग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जागृभागं सस्तवन्दते विष्णात् पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अग्निर्मगस्ताः देवसविदप्रासावेः अस्रेव देवस्वगतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमिलीलासमेतस्य श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्मणि उपरिष्टान्तहोमं होष्ये अदिते नमन्नस्वा हनुमते नमन्नस्वा सरस्ते नमन्नस्वा देवसविदप्रसूवा यस्सम्लोग्ने दिवाकरम् अग्ने स्वाहा अग्नेर्नादाय स्वाहा अग्नेवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा असोष्टेभ्यः स्वाहा तैरन्दुष्टैः स्वाहा लष्कुर्त्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रोध्यैः स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सरसमृद्ध्यै स्वाहा तेजो देवी स्वाहा समिधसि तेजोसि देवदेवी स्वाहा सोमस्तवत्नेपाहि स्वाहा सूर्यस्थदेमहे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा वायुं मे देमहे गुणां मे स्वाहा ब्रह्मण्ये पाहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तैवाद प्रियानिमितहोत्राधात्वानि मानज्ञानकृतेन स्वाहा मानज्ञानकृतेन पूर्णादिमावते स्वाहा अग्निभुक्तज स्वाहा वैद्यभुक्तज स्वाहा पृथ्वीभुक्तज स्वाहा मोक्षगन्धर्वाप्तज स्वाहा अग्निजीर्णं वेदे जीर्णं दुहो जीर्णं पृथ्वे जीर्णं समद्वाभिषाकृतेन आद्यशेषं पूर्णाहुते इन्द्राय स्वाहा पूर्णाहुते उत्तमाञ्जुहोति पूर्णाहुति उत्तमाञ्जुहोति पूर्णाहुतिः पूर्णामुहूर्तस्तु मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो मुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तृप्तदा दौस्तृप्तदा पृथ्वे तृप्तदा ब्रह्मा जार्जन्ताम् अदिते नमगस्ताः देवसविदप्रासावेः पवित्रं पवित्रं मे भूयां स्वाहा पूर्णं पूर्णं मे भूयां स्वाहा रात्यां रेक्वाम् अधराजां दक्षिणप्रदोपनया पश्चिमप्रदोपनयां प्राच्यां विष्णो सदा नमसीं ग्रन्थिं सङ्गृह्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निः प्रोक्षाप्यायन्ताम् ओषधयो विश्वभेजन स्वाहा उतस्मात् भस्वमालिप्याम् अग्नि प्रोक्षाप्यायन्ताम् ओषधयो विश्वभेजन स्वाहा
भूतस्मादे भस्मालिप्याम् भूतस्मादे लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् स्थिरयाग्निर्भवतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयार्षं दमदग्नित्रयार्षं कस्तमग्नित्रयार्षं तद्देवानां त्रयार्षं दीर्घायुत्वाय स्थिराय बलाय ब्रह्मवर्चसे आदित्याय सोमो नमः आपो हिष्टामयोपवस्थानमूर्ते जुराधुना अहेरणाय दक्षते वसतेरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यस्वक्षयापोजनेताजनः दिवस्तयस्वान्तरिक्षयदस्वान् पृथिव्यास्तम्भवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसाय त्वाम् अनुरयीनाम् आपोजनयता जनः स्वमेश्वरस्तमे ज्ञापते नमस्य यत्ते एदं वाचनं वाग्ने दातवेसे भगवान् तृप्ततो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा विद्यात्रा वा प्रकृते स्वभावात् साक्षात् श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीनिवासात्मस्तु ब्रह्माण्डमुद्वासयामि सोमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि आदित्यमुपगस्या यज्ञेश्वराय नमः मूलोपहारनैवेद्यं समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु तस्य ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्रीनिवासार्पितमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पितमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை செவித்தோம். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஆண்டாள் தன் தோழியிடம் தான் கண்ட கனவினை சொல்லி தனது ஆவல் பூர்த்தியாகுமா என்று கேட்பதாகவும், தோழி ஆண்டாள் கனவு விரைவில் பலிக்கும் என்பதாகவும் அந்த ஆண்டாளின் மனதை தேற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது. அப்படி அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி அந்த கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதோ வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றும் படலம். எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் மற்றும் நாச்சிமார்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த தூரத்தை சமீபப்படுத்தவும், அந்த மனதிலே உள்ள கோரிக்கைகள் நிறைவேறவும் புஷ்பங்களால் விடும் தூது என்றும் அந்த மாலைகளை மாற்றும் படலம் மாலா பரிவர்த்தனம். ஆக பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம். எம்பெருமான் தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அர்ச்சக சுவாமி கொண்டு சென்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு சற்று நேரம் தன்னுடைய கழுத்திலே வைத்துக்கொண்டு அதன் பிறகு எம்பெருமானுக்கு அனுப்புகிறார். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா 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 என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த வேங்கடவனுடைய கழுத்திலே தோளிலே அலங்கரிக்கிறது அந்த மாலையானது. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதன் பிறகு அந்த எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அனுப்புகிறார்.
பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறாள். ஏனென்றால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே வட்டபத்திர சாயிக்கு தினந்தோறும் மாலையை தொடுத்து அனுப்புகிறவள் அந்த பூமி பிராட்டி என்கின்ற ஆண்டாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டியை செவிக்கலாம். அதைத் தொடர்ந்து சூடி களைந்து கொடுத்த மாலை. ஆக அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் எம்பெருமானுடைய கழுத்திற்கே செல்லுகிறது, தோள்களை அலங்கரிக்கிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று இதோ மூவருடை ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்தி அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா, கோவிந்தா என்று தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனின் கல்யாண உற்சவம் அக்ஷதாரோபணம் மங்கள நீராஜனத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.